झारखंड हाई कोर्ट का यह नया भवन कई खासियतों को अपने में समेटे हुए है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितना खूबसूरत है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि यह 72 एकड़ में यह बिल्डिंग बना हुआ है और आज अगर हम बात करेंगे तो देश के सबसे बड़े कोर्ट परिसर के रूप में यह स्थापित हुआ है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इसका उद्घाटन किए हैं और इसमें 25 कोर्ट रूम बनाया गया है। जो 25 जज जो हैं यहाँ पे जजों की संख्या जो स्वीकृत पद है जजों की वो 25 है और उन सभी के लिए कोर्ट रूम है। उनके अलावे जजेस के लिए रूम है। साथ ही अगर हम एमिनिटीज की बात करेंगे तो एमिनिटीज की भी कई व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। जो अधिवक्ता है उनके लिए 540 कमरे बनाए गए हैं, उन्हें अलॉट किया जाएगा। इसके अलावा जो टंकन का काम करते हैं, टाइपिस्ट जो होते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो इस पूरे परिसर की सुरक्षा में जो तैनात रहेंगे सुरक्षाकर्मी, उनके लिए एक बैरक बनाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो एक यहाँ पे डिस्पेंसरी भी बनाया गया है जो अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस है, जिसमें अगर किसी भी तरह की कोई चीजें होती हैं तो उसमें तत्काल इलाज कराया जा सके। सबसे बड़ी खासियत इस परिसर की यह है कि ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। इसके जो दीवार बने हैं वो साउंड प्रूफ है, फायर प्रूफ है। किसी भी तरह आग लगने की स्थिति में वो जो है अंदर जो लोग होंगे वो सुरक्षित होंगे। एक तरह से कहा जाए फायर प्रूफ बनाया गया है। साथ ही पूरी तरीके से यह इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ पे 2000 से ज्यादा प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं जो यहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। एक बेहतर माहौल, एक बेहतर वातावरण जो है यहाँ के लोगों को मिल सकेगा जो यहाँ रहेंगे। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सोलर पैनल व्यवस्था की गई है और वो सोलर पैनल यहाँ जगह बचाने के लिए की गई है। जो पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है, पार्किंग का जो शेड लगाया गया है उसमें सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे कि 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और उस 2 मेगावाट बिजली से यहाँ की जो ये चकाचौंध रोशनी जो है वो मेंटेन की जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए झारखंड हाईकोर्ट अपने आप में कई खासियत लिए हुए, कई चीजों को अपने में समेटे हुए है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह अद्भुत नजर आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोहार, नमस्कार। I am delighted to be among you here today. I have an old association with the people of Jharkhand and I find their warmth amazing. I am grateful to you all for your warm welcome and for making me feel as if I am back at home once again. Today, the Jharkhand High Court is crossing an important landmark with the inauguration of its new building. In its earlier stage, it was set up in 1972 as the circuit bench of the Patna High Court. This High Court was set up after the state of Jharkhand was carved out of the state of Bihar in November 2000. In barely 2 decades, it has grown impressively and its sanctioned strength of judges has more than doubled from 12 to 25. The building from where it was functioning was once meant only for the circuit bench. Befitting its new profile, there was obviously the need for larger, the more modern infrastructure to efficiently dispense justice. The new building is truly impressive with its modern amenities and state-of-the-art physical infrastructure. It has a residential complex for the judges and the members of the registry. Apart from lawyers' chambers and the State Bar Council building. What is really notable is that the entire campus is designed and constructed by keeping the principle of energy conservation in mind. On top of it, the afforestation along with the presence of a variety of trees makes it truly a green campus. I am sure this new building of the Jharkhand High Court will inspire other public and private organizations to make the environment the central factor in their projects of similar nature.
It is also a necessity in the age of global warming. I congratulate everyone who has contributed to making this project a reality. I find the new campus visually pleasing as well. For those of you working here, it should be a pleasant experience to expend your working hours in this beautiful campus. In the context of working conditions, I would like to point out a trend we have witnessed in recent years. Many court buildings have opened creches so that our sisters can balance their family responsibilities in their work. I am sure the new building would have a provision for a creche. Ladies and gentlemen, this court is a temple of justice. The people of this nation look at courts with faith, and even the language of law reflects that feeling when we use words like pray. People themselves have given courts the power to dispense justice. That is to say, to set wrongs right. They come here with a prayer to get what is just. It is a very serious responsibility indeed. That brings us to a topic on which I have often spoken, namely the question of access to justice. Improving it is always a work in progress. We must constantly endeavor to find new ways to continue that process. Access has many aspects. Cost is among the most important of those. It has been observed that the expenses of litigation all too often put the cost of justice out of reach for many citizens. In response, various authorities have taken a number of welcome initiatives, including the opening of free legal counseling cells. Many lawyers to offer pro bono services. I urge all stakeholders to think innovatively and find new ways to expand the reach of justice. झारखंड हाई कोर्ट के इस नए भवन में जो सुविधाएं हैं, जो सारी चीजें हैं, उसको देखकर जो अतिथि आए थे वो भी काफी खुश थे। अभी हमारे साथ में हमारे झारखंड संपादक श्री शैलेंद्र हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज एक तरह से कहा जाए झारखंड को एक बड़ा तोहफा मिला है। ये नहीं, तोहफा भी है और एक तरह से कहा जाए कि पूरे देश में इतना बड़ा अभी हाई कोर्ट भवन किसी के पास है नहीं, किसी राज्य के पास नहीं है। और एक तरह से ये कहें कि ये अपने आप में मॉडल है, ये जो तस्वीर है, और ये कहें कि अपने आप में बिल्कुल अलग है, अनोखा है। और यही नहीं, जब यहाँ पर आए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो बातें कही और जो चीफ जस्टिस ने बातें कही, वो कहीं न कहीं दिल को छूने वाली हैं। और ये कहें कि जो आम लोग न्याय चाहते हैं, जो न्याय के लिए हाई कोर्ट्स में जाते हैं, लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर आने वाले दिनों में साबित होगी। किस तरह से जो न्यायिक व्यवस्था है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, जो एआई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है और जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, उसको कैसे न्यायिक प्रक्रिया में यानी न्यायिक प्रणाली में शामिल किया जाए। क्योंकि जो विविधताओं का देश अपना है भारत, और यहाँ पर जो कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदलता है और 3 कोस पर बानी, यानी कि आप 9-10 किलोमीटर जाएंगे आपकी भाषा जो है वो बदल जाएगी। इसीलिए एक्सेस टू जस्टिस की बात उन्होंने कही कि जो समाज के सबसे पिछले वर्ग के लोग हैं, जो सबसे पायदान पे पिछले में है, तो वैसे लोग हैं जिन्हें हिंदी तो ठीक से आती नहीं, अंग्रेजी कहाँ से सीखेंगे, जबकि कानून की भाषा अगर बात करें तो अंग्रेजी में ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सारी चीजें होती है। तो उसको लेकर के भी चर्चा। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था। और ये जो सुविधा है या कहे कि ये व्यवस्था है, किस तरह से उन्होंने बताया कैसे 35 से 3600 केस ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं जो एआई के जरिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया है, उनकी एक्सेस है। दूसरी चीज, एक बड़ी चर्चा अभी चल रही है या क्या है
कि हम लोग सब लोग मोबाइल यूज करते हैं और उसमें देखते हैं किस तरह से जो लाइव कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट्स में जो सुनवाई होती है वो लाइव होती है। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से संभव हुआ और टेक्नोलॉजी किस तरह से जो कोर्ट्स की सुनवाई होती है वो एक तरह से कहा जाए सबके बीच में रहती है। क्या न्याय मिलता है, किस तरह से वकील बहस करते हैं, किस तरह से कहें कि जस्टिस है वहां पे व्यवहार करते हैं, तो ये सब चीजें लोगों के बीच में होती हैं। और क्या जो सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे न्यायाधीश हो, उन सब की बात सामने आती है। यानी कि जो न्याय है वो धीरे धीरे जो है ये आम लोगों के बीच में वो होता जा रहा है। और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं, करीने से जो पेड़ लगे हुए हैं, तो बताया गया कि लगभग 2000 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, इस पूरे परिसर में लगाए गए हैं। जो 165 एकड़ का ये परिसर है, 10 साल इसको लग गए बनने में, लेकिन जो बना तो अपने आप में एक मिसाल है। और ये झारखंड के लिए कहें कि जिस तरह की इसका पुराना भवन था और जो वहाँ पर लगभग 51 साल से चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब ये भवन है तो ये मॉडल भवन है। और जाहिर सी बात है कि इस भवन के जरिए ये दोनों ब्लॉक जो आप सामने देख रहे हैं और बीच का जो ब्लॉक है, बीच का ब्लॉक ये है कि वहाँ पर जो है तमाम कोर्ट्स रूम है जो 24 जजों के लिए और एक मुख्य न्यायाधीश के लिए, 25 कोर्ट रूम उसमें है। बगल में जो उधर है और ये कहें कि राइट एंड लेफ्ट जो दोनों भवन हैं, ये दोनों भवन जो है जो वकील हैं यानी कि जो लॉयर्स हैं उनके बैठने के लिए इसमें तमाम सुविधाएं हैं। उनके रिक्रिएशन से लेकर कैंटीन से लेकर और कहें कि सब चीज़ें जो एक आम रोजमर्रा में ज़रूरत होती चीज़ें उसके लिए। और आपने दिखाया होगा पीछे साइड में किस तरह से जो पार्किंग की व्यवस्था है उसमें कैसे जो कहा जाता है प्लेट लगाए गए हैं, प्लेट्स लगाए गए हैं और उनसे 2 मेगावाट यानी कि हमको लगता है कि इस परिसर को जिससे उत्पादन होता है, कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, तो वो खर्च नहीं होगा। हालांकि झारखंड खनिज बाहुल्य राज्य है और यहीं से देश और दुनिया में रोशनी हो रही है एक तरह से कहा जाए, लेकिन ये हाई कोर्ट का जो परिसर है ये अपने आप में सबको रोशनी देगा। और जाहिर बात उसके नीचे गाड़ियां खड़ी होंगी और ऊपर से जो सूर्य की रोशनी आएगी उससे बिजली बनेगी। तो ये अपने आप में एक अलग तस्वीर है और साफ तौर पर है कि ये भवन जो है ये भी कई चीजें कहता है, क्योंकि इसके बगल में आप देख रहे हैं कि हाई जो विधानसभा भवन है और इसके अंदर ही जो न्याय देने वाले हैं उनको रहने के लिए भी व्यवस्था है, डिस्पेंसरी की व्यवस्था। अगर इसको हम एक तरह से कहें कि न्याय नगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ होगा। उनके रहने की व्यवस्था होगी, उनके जो कैंपस के अंदर ही उनके कोर्ट्स लगेंगे। तो ये अपने आप में बिल्कुल एक अलग वो है। और पीछे देखिए, पीछे किस तरह से जो मुख्य सड़क है उससे आएंगे तो सामने जो एक सरकार ने शुरू किया है कि तिरंगा जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है, उनमें तिरंगा हो, तो अपने आन बान शान का प्रतीक जो तिरंगा है वो भी दिख रहा है अपने आप में ही। ये मनोहारी दृश्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, इन बिल्डिंग्स की दीवारें जो हैं वो साउंड प्रूफ है, फायर प्रूफ है। साथ ही पूरा का पूरा ये एनवायरनमेंट अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो पूरा एक तरह से कहा जाए कि इको फ्रेंडली बनाया गया। तो अपने आप में ये एक अनूठा है और आने वाले दिनों में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा सकती है। बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कहे कि समृद्धि में अगर यहाँ पे जिस तरह से खनिज था, जिस तरह से और चीजें हैं, चूंकि यहाँ जल जंगल जमीन की बात होती है और देश के सबसे पिछड़े लोग यानी जिनको आदिवासी कहा जाता है कि उनको किस तरह से अगर ये इस परिसर की सार्थकता सिद्ध करनी है, जो बातें आज हुई कि तमाम ऐसे लोग हैं जो महीनों जेल में बंद रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है, लेकिन अब इस भवन से ये उम्मीद होगी। झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन का आज उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया और इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री सब शामिल थे। इस मौके पर सारे लोगों ने एक ही बात को दोहराया कि भवन की सार्थकता तब होगी जब जस्टिस टू एक्सेस यानी कि लोगों तक न्याय की पहुंच हो। और इसके लिए क्या कुछ करना है, कैसे करना है, किस तरीके से किया जा रहा है, इन सारी बातों पे चर्चा हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें यहाँ छन करके आई है वो लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगी। आने वाले दिनों में एक्सेस टू जस्टिस का जो सपना है वो पूरा होगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचेगी, उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार सिन्हा के साथ रांची से मनोज की रिपोर्ट।
झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये पुराने बिल्डिंग और नए बिल्डिंग में क्या अंतर महसूस करेंगे वो, और कितने खुश नजर आ रहे हैं आज। देखिए, आज अधिवक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज नए भवन का, नए परिसर का महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया है। जिस प्रकार से कॉम्पैक्ट जगह में अभी तक हम लोगों ने लोगों को न्याय दिलाने का काम किया, अब उससे 33 गुना बड़ा स्थान में, चूंकि वो 5 एकड़ का जगह था और ये 165 एकड़ का जो आज लोकार्पण किया गया है जिस परिसर का महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें गरीबों के लिए सुलभ न्याय दिलाने की काफी व्यवस्था की गई है और उन लिटिगेंट्स के लिए बहुत सारे ऐसे नए तरीके अपनाए गए हैं जिससे कि उन्हें गांव, सुदूर गांव में भी जो लोग बैठे हैं उनको सुविधा दी जा सके और सुलभ न्याय दिलाया जा सके। सुलभ न्याय की बात की है, तमाम जो डिग्निटरी थे उन लोगों ने भी ये बात कही। राष्ट्रपति ने एक बात कही कि जस्टिस जिस तरीके से पहुंचना चाहिए लोगों को पहुंचता तो है, लेकिन वो सही मायने में जस्टिस नहीं। एक्चुअली हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने जो बातें कही वो इस संदर्भ में कही कि झारखंड के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां थोड़ा पिछड़ा है, आदिवासी है, उन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उनका कहने का वो मतलब था कि उन तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाती है और अज्ञान के कारण वो अपने हक के लिए जो लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पाते हैं। बट अब तो बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं, जैसे झालसा है, उसका बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में भी बहुत कार्य किए गए हैं जिससे कि ज्ञानता बढ़ी है। अभी भी कुछ ज्ञानता की कमी है, तो वो जब पिछड़े वर्गों में, पिछड़े क्षेत्रों में वो जो ज्ञानता बढ़ेगी तो वो अपने हक का उपयोग करना सीखेंगे और जानेंगे कानून क्या है, कैसे अपने हक के लिए लड़ना है। कई बार उनके जमीन चले जाते हैं, कई बार उनके जो क्राइम करते हैं वो न्याय नहीं ले पाते हैं, कुछ वजह से देर होती है। ये सब बातों की तरफ जो मुझे समझ में आया हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ध्यान आकर्षित कर रही थी, वो भी धीरे धीरे हमें लगता है बहुत हद तक वो सफलता कुछ हद तक आई है और थोड़ा समय लगेगा वो सफलता भी बहुत सारे माध्यम से। एक बड़ा सवाल था ये सबके लिए, मतलब जो न्यायविद हैं, जो वकालत कर रहे हैं, जजेस थे वहाँ पे, कानून मंत्री थे, सबके लिए कि जो व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके से लोगों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलता है लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पाता। वो न्याय मिलने का जो लुत्फ है, जो खुशी है, वो नहीं होता। उसका कारण यही है, हमारे राज्यपाल, हमारे जो राष्ट्रपति महोदया जो बोली है कि स्थानीय भाषा का कमी के कारण कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, जिससे न्याय उनको सही नहीं मिल पाती है। और कुछ लोग न्याय मिलने के बावजूद भी वो जो है सजा काट लेते हैं, निकल नहीं पाते हैं, पैसा का अभाव रहता है, समझ का नादानी रहता है। उसके ऊपर भी हमारे राष्ट्रपति महोदया बोली है कि उस पर विचार किया जाएगा। बहुत जल्द ही उस पर ध्यान आकर्षित करते हुए हमारे मुख्यमंत्री साहब भी बोले हैं कि भाई उस पर ध्यान देते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि वो लोग को जो है आगे न्याय मिले और वो लोग सही सलामत निकल जाए। क्या कहेंगे? सीजेआई ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। देखिए, मेरा कहना है जो अगर जो अधीनस्थ न्यायालयों के इस ये सोचनीय बात है कि इस देश के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी आज खुले मंच से स्थापित किया कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात आती है, जुडिशियम सिस्टम या जो लोग बेवजह जेल में कम सजा में ज्यादा दिन तक जेल में काट रहे, इसका एक सबसे बड़ा कारण है, या जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, इसका सबसे बड़ा एक ये कारण है जिसको कि मंच से माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब ने उठाया है। इस पे गौर करने की जरूरत है कि जब तक सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्री हैंड होके काम नहीं करेगा, जैसे होता क्या है कि हमेशा व्यवहार न्यायालय में न्याय जो मजिस्ट्रेट लोग हैं, जजेज हैं, वो इस डर में रहते हैं कि कहीं हमारे जजमेंट के अगेंस्ट में किसी तरह का कोई हमारे खिलाफ एथी ना हो जाए। इसीलिए
ये बहुत अच्छा लगा उनका एक अप्रोच, और ये उनका एक संदेश था भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए कि जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो ये ना समझें या जुडिशियल अफसर कि हम किसी के अधीन में हैं, हम जो कर रहे हैं उससे मतलब फेयर हैंड हो के जस्टिस करें और खुल के काम करें, जिससे न्यायिक व्यवस्था सही मायने में धरातल पे उतरे और इससे लोगों को लाभ मिले। न्यायिक व्यवस्था धरातल पर उतरे और लोगों को उसका लाभ मिल सके। आज जब राष्ट्रपति ने संबोधित किया यहाँ तमाम अधिवक्ताओं को, जो तमाम जो लोग आए हुए थे, जजेस को, और जो सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जो बातें कही, तो ये कहा जाए कि एक तरह से कि आने वाले दिनों में लोगों को सुलभ न्याय कैसे मिलेगा, ये इन सब के पीछे यही सोच छुपी हुई है कि सुलभ न्याय कैसे मिले, लोगों को सस्ता न्याय कैसे मिले और समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस तरह न्याय पहुंचे।